Welcome all of you. So in today's class, we are going to start a new chapter of coordinate geometry, and we'll also try to see various concepts involved in this chapter. We'll also try to derive them wherever necessary. And of course, we'll try to solve all the questions and the solved examples. So we'll try to cover every part of that NCERT book, and also we'll try to solve it more for the foundation level for coordinate geometry after we finish up the coordinate geometry from the very basic level. So let us start with the coordinate geometry, and we'll see what are the concepts that are involved in the coordinate geometry at this level, right? So let us start the concept. So let us start with the very basic concepts. जहाँ पे हमको we'll try to discuss about the distance formula first. सबसे पहले हम discuss करेंगे distance formula. So we'll have 2 points. उन दोनों points के बीच में distance कितना है we'll try to derive, and that is known as the distance formula. तो distance formula की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें बहुत बेसिक चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए कि हमारे पास अगर एक कोऑर्डिनेट प्लेन की हम बात करें, सो लेट अस से दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस. इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, ये पॉइंट्स क्या है, बस इतना ही. अब यहाँ पे द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट विल मार्क फ्यू पॉइंट्स. हमको पता है कि we are distance formula. So what basically distance formula is, there are 2 points P and Q. So we have to find out the distance PQ. So let us say the point P, we'll mark the points. यहाँ पे जो point P है, that point P is actually x1, y1. एक कहीं point है मान लो Q. So this point Q is x2, y2. तो ये 2 point है हमारे पास, and we have to find this distance, कि ये जो distance है ये कितना होगा. और वही एक फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले को हम याद भी रखेंगे. अब यहाँ पे देखो ज्योमेट्री से हाउ वी विल ट्राई टू डिराइव दिस, कि x1 और y1, x2 और y2 ये दोनों किस तरह के जो पॉइंट्स हैं, इनका मीनिंग क्या होता है. तो वील ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. थोड़ी देर में हम वो करते हैं डिस्कस. ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, so that will be, so let us write down. So this distance from the y-axis to this point, this is clearly x1, and this distance is y1. So this is the meaning of x1, y1. और इसी तरह से आप अगर q तक जाओ, यहाँ तक, let us say this is till the point q, so this distance is x2 and this distance is y2. This is the meaning of these x2 and y2. ठीक है. x2 का मतलब क्या हुआ, आप x एक्सिस पे x2 यूनिट्स चले. y2 का मतलब आप y एक्सिस के अलोंग y2 यूनिट्स चले. तो दिस इज द बेसिक ज्योमेट्री. अब यहाँ पे व्हाट वी कैन डू इज टू फाइंड आउट PQ, वी कैन फॉर्म सम ट्राइंगल्स. क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ट्राइंगल्स के बारे में, हमें सारी चीज़ें पता है, तो वो चीज़ हम यूटिलाइज करने की इस वाले क्वेश्चन में हेल्प करेंगे इन द डेरिवेशन. तो ये हम पहले सारी चीज़ बना लेते हैं. दिस इज दिस, तो यहाँ पे we can join this also, and we can mark now these points PQ. Let us, this point is R S, and this intersection point here is T. Now you know that this is basically nothing but a right angle triangle. ठीक है, ये जो triangle होगा, triangle PQT is a right triangle. अब right triangle है और right angled at T. अब क्योंकि राइट ट्राइंगल है तो वी कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें PQ निकालना है, राइट. सो क्योंकि हमें PQ निकालना है, वी कैन डायरेक्टली राइट डाउन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर. अब यहाँ से PT और QT को निकालेंगे हम इन टर्म्स ऑफ x1, y1
x2 y2, क्योंकि हमें x1 y1 x2 y2 ही गिवन है, वी हैव टू फाइंड आउट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ दैट ओनली। पीटी की बात करते हैं, तो अगर ध्यान से देखो यहाँ पे पीटी में, पीटी जो होगा ये आर एस के इक्वल होगा, आर एस, और मैं डायरेक्टली इसको लिखता हूँ, आर एस क्या होगा, x2 माइनस x1, ये हो गया x2, x2 में से x1 माइनस कर दोगे तो आर एस आ जाएगा, यहाँ से हमको साफ साफ नजर आ रहा है, दिस PT will be equal to RS, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है पूरा, so PT is equal to RS and RS is equal to x2 minus x1। तो यहाँ पे कम से कम मैं इतना लिख सकता हूँ, PT is equal to x2 minus x1, now this is whole square। Similarly we'll talk about QT, QT is equal to, so let us try to write it down here, QT is equal to QS minus TS। अब QS तो कंप्लीट डिस्टेंस कितना है, y2 माइनस TS, TS किसके इक्वल है, PR के, तो ये हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1, क्योंकि जो PR है y1 के इक्वल हो जाएगा, तो दिस वी कैन राइट डाउन y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस जो PQ हो गया विल बी अंडर रूट ऑफ दिस, सो वी कैन से द रिक्वायर्ड डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। यही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आपके पास अगर कोई भी दो पॉइंट गिवन है और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है, तो यू विल डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला कैसे आया है वो भी हमने यहाँ पे देख लिया है, तो वो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, एकदम सिंपल, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड। उसके बाद कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे वी हैव अ क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन P माइनस 1, 2 एंड Q 2, -1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एप्लीकेशन देखने के लिए, नॉट इवन द एप्लीकेशन, जैसे फॉर्मूला। तो यहाँ पे फटाफट से डिस्टेंस निकाल के, यहाँ पे सिर्फ हमको फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है इसमें, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 PQ कितना हो जाएगा, और वी कैन से PQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 किसी को भी x1 x2 ले लो आप, तो मान लो x2 आपने इसको लिया, 2 माइनस ऑफ -1, सर तो आपकी 3 आवाज थोड़ी स्क्वायर। कम हो गई एकदम से। अभी आवाज नहीं आ रही है आपको, तो हम यहाँ पे 3 स्क्वायर, तो -1 -2, तो -3 का स्क्वायर, ठीक है। चलो आप अगर बिल्कुल ही लिखना ही चाहते हो तो 2 माइनस -1 स्क्वायर, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, which is 3 square plus 3 square, simple। So 2 times 3 square, so clearly PQ equals 3√2। तो जो डिस्टेंस होगा PQ का, that will become equal to 3√2। Let us try to solve the next question। The question says that you have, this is the next question। Question में बोल रहा है, we have the points, let us say point P which is 3, 2, let us say there is a point Q which is -2, -3, and there is a point R which is 2, 3। So these points we have to tell that these points form a triangle or not। पहले हमको ये बताना है if these points form a triangle। The question does not stop here,
बाद में और पूछ रहा है कि दिस फ्रॉम yes if yes what kind of triangle, किस तरह का बनेगा। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि इक्विलेटरल होगा कि आइसोलेस होगा, इस तरह की चीजें हैं। तो पहले तो आप ट्रायंगल पे फोकस करो, पता लगाओ बनेगा या नहीं। तो इस क्वेश्चन में ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा, उसके लिए बेसिक कंसेप्ट जो इन्वॉल्व है, अभी जितना हमको पता है, जितना नॉलेज है, उसके हिसाब से आपको, क्योंकि हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है तो विल यूज डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अब उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे। हमारे पास मान लो कोई भी ट्रायंगल है, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इक्वल भी नहीं होगी, नॉट इवन इक्वल टू। तो जो आपके पास तीन साइड आई, मान लो आपने तीन साइड की लेंथ मानी ए बी सी, तो ए प्लस बी करोगे वो सी से बड़ी आनी चाहिए, बी प्लस सी करोगे वो ए से बड़ा आना चाहिए, सी प्लस ए करोगे वो बी से बड़ा आना चाहिए। तो एनी टू साइड्स, ठीक है, मतलब आप कोई भी साइड लो, कोई भी दो साइड लो, उनका सम थर्ड साइड से हमेशा बड़ा आना चाहिए। कोई पर्टिकुलर साइड नहीं कि हमने ये दो पर्टिकुलर साइड ले, नहीं, कोई भी दो सेलेक्ट करो, उनका सम थर्ड साइड से हमेशा बड़ा आना चाहिए। एक, ये तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मेथड है, लेकिन एक थोड़ा सा हम छोटी सी चीज और पढ़ेंगे जो कि आप 11th में पढ़ोगे, लेकिन हम उसको वेरीफाई करने के लिए फटाफट से पता लगा सकते हैं कि वो ट्रायंगल फॉर्म एक्चुअली कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, जस्ट टू वेरीफाई। स्कूल में अभी वो यूज मत करना, ठीक है। तो अब जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से ट्राई टू फाइंड आउट, मतलब आपको साइड्स तो निकालनी है सारी, पी क्यू, सर क्यू आर साइड एंड पी निकालने आर। में एक तो सबसे पहले हम पी क्यू की बात कर लेते हैं। तो पी क्यू जो हो जाएगा दैट विल बी अंडर रूट 3 + 2 5 स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं 5 स्क्वायर, और 2 + 3, क्यों 2 ऑफ 2 प्लस 2 माइनस ऑफ -3, तो दैट विल अगेन बी 5 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास हो गया ये, आप इसको कह सकते हो √50 कह सकते हो, या फिर 2 × 5 स्क्वायर, ऊपर वाली की तरह देखो इसमें, सो दैट वी कैन से एज 5√2। तो इसको हम 5√2 भी कह सकते हैं। तो पहली ये वाली साइड आ गई हमारे पास पी क्यू। ऐसे ही हम क्यू आर की बात करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्यू आर -2 -2 4 स्क्वायर, हो गया 4 स्क्वायर, -3 -3, तो दैट इज 9 स्क्वायर। तो 9 स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और दिस इज 16 + 81, ठीक है। और अब यहाँ बात करते हैं हम पी आर की, तो ये पी आर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपको चीज़ें करते चले जानी है वो ये रहेगी कि जो भी रूट्स में आ रहा है, तो रूट्स में जो आ रहा है उनको कंपेयर कैसे करेंगे, वो भी चीज़ें थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 80 + 10 कितना हो गया 90, और ये हो जाएगा आपके पास 97 रूट के अंदर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, पी आर की बात करेंगे अगर, 3 - 2 तो 1 हो गया, 3 - 2 1, तो 1 स्क्वायर, 2 सर - 3 इज में -1, सो दिस इज +1 स्क्वायर, ठीक है। तो 9 स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, 6 स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कट करके हम कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर है, सो दिस बिकम्स √52, दिस इज √52, ठीक है। अब यहाँ पे आते हम पी आर की बात कर रहे थे, तो पी आर इज 3 - 2 1, 2 - 3 1, तो √2, ठीक है। अब हम कंपेयर करते हैं दोनों को, ठीक है, कंपेयर करके पता लगाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब लेट अस ट्राई टू सी कि पी क्यू यहाँ पे 5√2 है, अब √50 और √52। अब ध्यान से देखो, अगर हम ये कहें पी क्यू + क्यू आर, वो तो क्लियरली पी आर से बड़ा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, पहली चीज। दूसरी कि क्योंकि देखो पी क्यू ऑलरेडी √50 है, ये √52 है, ये तो छोटा सा है √2, तो इसमें हमें दिक्कत ही नहीं है।
दूसरा, अगर आप ऐसा करो कि दिस क्यू आर प्लस पी आर, तो क्यू आर और पी आर, क्यू आर ही पी क्यू से बड़ा है, तो पी आर और ऐड कर दिया तो ऑब्वियसली दैट विल बी ग्रेटर देन पी क्यू। तो यहां तक तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी टू कंपेयर। जो प्रॉब्लम आ सकती है दैट कैन बी व्हेन यू हैव पी क्यू प्लस पी आर, मतलब आप अगर पी क्यू प्लस पी आर की बात करोगे, सो दैट इज √50 प्लस एंड देन यू हैव √2। ठीक है, क्या ये √50 से 52 से बड़ा होगा? बस ये चीज आपको सोचनी है, क्योंकि दो दो पहले वाले थे वो तो क्लियरली अलग से आराम से दोनों एक दूसरे से बड़े होते जा रहे थे। तो √50 प्लस √2, क्या √52 से बड़ा होगा? बस इस बारे में सोचो। आप देखो देखो, आपको पहली चीज ये है कि आपको बहुत सारी चीजें पता है। एक जो लेंदी मेथड है वो तो ये है कि √2 की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, 1.414 आप डाल लोगे, ठीक है, आप ये काम कर लोगे उसमें। अब दूसरा है कि √52 है, क्योंकि √2 ही आ रहा है, वहां पे √2 आ रहा है, यहाँ पे नीचे वाले में भी √2 आ रहा है, और अगर आप √52 की बात करोगे, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसमें भी आपको फिर इसका रूट निकालना पड़ेगा। ये एक तरीका हुआ। दूसरा, अब यहाँ देखो, आपको इसको कंपेयर करना है √52 से, बस इस तरह सोचो, ये हो जाएगा √52। तो अब इसको √52 से हम कंपेयर किस तरह से कर सकते हैं, कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके देखो, आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक आइडिया जरूर लग जाएगा कि, और बेसिक देखो, इसको आप ऐसे कर सकते हो, दिस इज, यू आर कंपेयरिंग दिस एंटायर थिंग विद √50 + 2। देखो दोनों में एक लिंक बन रहा है। √50 प्लस √2, ये तब बता रहा हूँ जब आप कैलकुलेट नहीं करना चाह रहे हो। कैलकुलेट करके तो आसानी से निकलोगे ही आप, वो तो काम कर ही दोगे, लेकिन इफ यू डोंट वांट टू कैलकुलेट, तो √50 प्लस √2, और एक जगह है आपके पास √50 + 2। इन दोनों कैसे कंपेयर करोगे? थोड़ा सा मैंने हिंट दिया है यहाँ पे, थोड़ा सा सोचो इस बारे में। तो सबसे पहली चीज तो यही हो गई थी यहाँ पे कि हमको यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई है, ये तो निकाल लोगे, √52 सब कुछ निकालना आता है हमको, कंपेयर कर लोगे, वो कहानी खत्म हो जाएगी। दूसरी, अगर हम इस तरह से देखें, ये √50 प्लस √2 को ही देखते हैं, ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू कंपेयर बोथ ऑफ देम। अब ये हमेशा हर उसके लिए लागू रहेगा, ये बस आपके समझने के लिए। आप जब एग्जाम में लिखोगे तो √52 की वैल्यू निकालोगे, दिस इज द वैल्यू, √2 की दिस इज द वैल्यू, 5√2 की ये वैल्यू है, एंड देन यू विल कंपेयर। ये जो मैं बता रहा हूँ, दिस इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अगर ये जो √50 + 2 है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, दिस इज √50 + 2 को आप लिख सकते हो, दिस बिकम्स √50 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, पहली चीज, ठीक है, ये यहाँ पे एक चीज क्लियर हुई। दूसरा कि, चलो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, अगर आप ये लिखो कि √50 + √2, √50 + √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा √50 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स √50 इंटू दिस, जो कि हो जाएगा हमारे पास √100। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम 50 √50 + √2 अब अंडर रूट लेते हैं, लेट अस ट्राई टू टेक द अंडर रूट। तो अंडर रूट जब आप लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो अंडर रूट के अंदर √50 प्लस अंडर रूट के अंदर 50 + 2 तो आएगा ही आएगा, दिखाई दे रहा है, 50 + 2 तो आ ही रहा है ना अंडर रूट के अंदर। हाँ। पर और भी एक और एक्स्ट्रा क्वांटिटी आ रही है, दैट इज 2√100। इससे एक चीज समझ में आई कि जो 50 और 2 था,
वो तो आ ही रहा है, मतलब ये तो आ ही रहा है, एक्स्ट्रा क्वांटिटी भी आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? क्लियरली दिस इज ग्रेटर। ये बात समझ में आ रही है? ये क्या होगा? क्लियरली ग्रेटर रहेगा। चलो इसको थोड़ा सा और नेक्स्ट पेज पे समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं, ठीक है? तो देखो यहाँ पे जो हम काम कर रहे थे वो हम यहाँ कर लेते हैं। √50 प्लस √2, इसका स्क्वायर निकाला हमने, दैट वाज 50 प्लस 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 टाइम्स ab। अब अंडर रूट लेते हैं इसके ऑन बोथ साइड्स। सो दिस इज √50 प्लस √2 is equal to अंडर रूट ऑफ 50 प्लस 2 प्लस 2 टाइम्स √100। तो क्या ऐसे क्लियरली पता नहीं चल पा रहा है कि ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इज क्लियरली ग्रेटर देन अंडर रूट 50 प्लस 2? हाँ। वही तो हमें प्रूव करना था। ये बात समझ में आई? तो क्लियरली हमारे पास क्या आ गया? सो दिस एम्प्लाइज √50 प्लस √2 इज ग्रेटर देन √52। वही हमारा था जहां पे हम अटके हुए थे, ठीक है? ये आपके समझने के लिए है, और हालांकि यू कैन ऑल्सो यूज दिस इन द एग्जाम अगर आप वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो तो, ठीक है? लेकिन हाँ, उसके अलावा ये एनालिटिकल थिंकिंग में काफ़ी हेल्प करेगा ये सब तरह की चीज़ें, कि आपको एग्जैक्टली नहीं पता वो क्या है, लेकिन फिर भी हम कंपेयर करके निकाल पा रहे हैं, ठीक है? आई एक होप बार लास्ट कि वाला दिस स्टेप इज तो क्लियर। समझा दो। लास्ट वाला स्टेप देख लेते हैं, चलो। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि हमने क्या लिखा, ये अंडर रूट लिया, तो वी कैन राइट √50 प्लस √2 एज दिस। ये हमने ऐसा लिख लिया, सिंपल। अब ठीक है। देखो, अब हमको क्या करना है, अब इसको इससे कंपेयर करना है। अब इसमें ये देखो, रूट तो दोनों में ही है, रहने दो। तो बेसिकली आप इसको देखो और अच्छी तरह समझने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, 50 प्लस 2 प्लस 2√100 हमेशा 50 प्लस 2 से तो बड़ा ही रहेगा, सिंपल है। दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 50 प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं। सारी चीजें पॉजिटिव हैं यहाँ पे, तो रूट लोगे तो भी इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा भी रहना चाहिए, this also should be greater, and this is what, this is this, so it simply means if this is this, so √50 plus √2, so √50 plus √2 is greater than √50 plus 2। तो आप इसको हर तरह से कैसे भी घुमा फिरा के देख सकते हो, एंड यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब क्योंकि वो सारी कंडीशंस फॉलो हो रही थी हमारे पास, तो हम फाइनली उस क्वेश्चन के लिए आंसर तो लिखेंगे ही कि यस, पी क्यू आर फॉर्म्स अ ट्राइंगल। ये जो है ट्राइंगल बना रहे हैं। अब इसमें एक और छोटी सी चीज है कि हम अगर ये देखें, हमको ये पता लगाना था इफ सो व्हाट काइंड ऑफ ट्राइंगल। पहली चीज, अगर हम देखें कि पी क्यू की जो लेंथ थी दैट वाज √50, क्यू आर की जो लेंथ थी दैट वाज √52, एंड पी आर वॉज इक्वल टू √2। क्लियरली अगर आप यहाँ पे देखोगे, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल्स क्यू आर स्क्वायर, सिंपल। तो दिस फॉर्म्स द राइट ट्राइंगल, क्योंकि ये पाइथागोरस फॉलो कर रहा है। दिस इज द राइट ट्राइंगल। सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा राइट ट्राइंगल, एंड विच शुड बी इन द राइट एंगल। यहाँ पे हो जाएगा राइट एंगल एट पी, एंगल पी इक्वल्स 90 डिग्री। ये हाइपोटेन्यूस है, इसके अपोजिट जो एंगल होगा वही राइट एंगल होता है, राइट एंगल होता है, हमने थ्योरम में भी देखा है। ठीक है, क्लियर हो गया ये? इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव शो दैट
the points 1 7 comma 4 2 comma -1 comma -1 and -4 comma 4 are the vertices of a square. यहाँ पे भी आपको सेम चीज करनी है, यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस और उसके बाद यू कैन कंक्लूड कि जो वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर होंगे या नहीं होंगे। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। स्क्वायर है तो सारे जो साइड्स हैं वो होने चाहिए इक्वल, पहली चीज, ठीक है, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होने वाला रोम्बस भी हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि आपको और भी चीजें आपको पता करनी होंगी कि जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री होनी चाहिए। ये सब आपको करना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम ए बी सी डी मान लेते हैं इनको कि ये पॉइंट ए हो गया, बी हो गया, सी एंड दिस इज टी। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला आप लिखोगे ऐसे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, ये लाइन जरूर लिखोगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी इज इक्वल टू, ए बी मतलब ये वाला 4 -1 3 होगा, 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, ठीक है। तो 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर मतलब 9 + 25। दिस इज क्लियरली √34। ए बी निकाल लिया, अब निकालते हैं बी सी। बी सी में आ जाएगा हमारे पास ये 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर अगेन, तो 5 स्क्वायर + 3 स्क्वायर सेम थिंग आ जाएगी, विच इज इक्वल टू √34। सी डी, सी डी में हमारे पास सी और डी 5 -1 और यहाँ पे आ जाएगा अब +4, सो 3 स्क्वायर -1 -4 -5 स्क्वायर अगेन 3 स्क्वायर + 5 स्क्वायर। यहाँ पे ये भी कितना हो गया √34। तो यहाँ पे लेट अस कम टू द लास्ट पार्ट, सी डी एंड देन वी हैव डी ए और ए डी। 1 -4 is 5, तो 5 स्क्वायर x2 - x1 स्क्वायर 7 -4 3 y2 - y1 स्क्वायर। तो यहाँ पे सारी साइड्स तो आ गई हैं इक्वल, ठीक है, मतलब एक पहला काम, पहला टारगेट कंप्लीट। ए बी इक्वल्स बी सी इक्वल्स सी डी इक्वल्स डी ए, मतलब रोम्बस हो सकता है, स्क्वायर भी ऑफकोर्स हो ही सकता है। तो स्क्वायर के लिए हमको डायगोनल चेक करने पड़ेंगे। ए सी, वो भी ए सी, हाँ बिल्कुल सही है, दोनों इक्वल आ रहे हैं तो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ए सी मतलब ए बी सी डी है, यहाँ पे ये ए था, बी सी डी। ए सी वाले केस में हमारे पास 1 ऑफ -1 कितना हो गया 2, 2 स्क्वायर + 7 माइनस ऑफ -1 तो 8 स्क्वायर, तो हो जाएगा 8 स्क्वायर 64 + 4 68, सो दिस इज 68। ए सी आ गया, ए सी के बाद आपके पास बी डी आएगा, सो लेट अस try to check BD also. In BD we have 4 minus of -4 is 8. So 8 square plus 2 minus 4 minus 2 square. So 2 square. So again 64 plus 4 is 68. तो यहाँ पे ये भी हो गया इक्वल, AC is equal to BD, ठीक है। तो ये भी कहानी हमारे पास आ गई। सो हम ये कह सकते हैं, ये अगर 1 है, ये अगर 2 है, फ्रॉम 1 and 2 A B C D is a square। यही प्रूव करना था हमको, और जो चीज़ याद रखने वाली थी वो यही थी कि सिर्फ साइड्स इक्वल करके हम नहीं भूल जाएंगे, वी हैव टू कम्प्लीटली सॉल्व। पूरा सॉल्व करने के बाद वी कैन कंक्लूड फ्रॉम 1 and 2 कि दीज पॉइंट्स फॉर्म अ स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी यूटिलाइज द डिस्टेंस फॉर्मूला। और एक नया तरीका भी हमने थोड़ा सा सीखा
कि how we if we have the roots तो हम उनको कैसे compare करके without even finding out the exact value of those roots हम कैसे compare करके we can find out कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है. Apart from of course we can find out the value for root 52 and other values, right? That is of course one method. पर हमने एक और नई चीज वहाँ पे सीखी. So और also we have seen the application of the distance formula, how we can apply. इसके लिए हमारे पास स्क्वायर की प्रॉपर्टीज और ये सारी चीजें बेसिक चीजें हमको पता होनी चाहिए. So in the next class we'll try to continue from this. So try to practice. On the basis of this you can finish up the exercise 6.1 or the exercise first exercise of this chapter actually, right? So whichever that exercise is. So we'll meet up in the next class with more questions and the concept regarding this chapter as we finish up all the chapters. And you can also watch up the series for the triangles that has been uploaded. So the entire chapter has been uploaded completely. Try to follow it from the scratch, from the very first chapter till the last one, right? So the playlist has been made for the triangle with solved examples, with solving the question for the exercises, and also the derivation of all the theorems, every theorem, right? So in detail that chapter has been covered, and also the real numbers. So all these things are being uploaded slowly. So please try to follow everything whenever there's an upload of the chapter that you are interested in. You can definitely watch that, and I recommend so watch it from the beginning to the end to gain maximum out of the lectures, right? So we'll meet up again in the next class with some more questions and examples. So till then, all of you, bye bye and take care.